Hello students, today we are going to discuss our next topic in chapter number 25. Our topic is deduction and collection of tax at source. Some of the part of the chapter we are taking here and the remaining will be in the next videos. Part 1 देखिए डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स जो हमारा चैप्टर है, इसमें डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स क्या होता है और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स क्या होता है, दोनों चीज़ें बताई गई हैं आपको। चैप्टर नंबर 25 रिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। देखिए गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इनकम टैक्स। अब जो गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करती है उसे कलेक्ट करने के तरीके हैं, जिसमें रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट and notice of demand. In this chapter, the provisions relating to deduction of tax at source have been discussed. Meaning of deduction, in which tax deducted at source is defined. The tax deduction at source means that the person responsible for making payment of certain incomes to the income earners deduct income tax at the prescribed rates on such incomes before payment is made to them. यानी कि इनकम की पेमेंट करने से पहले अगर उसके ऊपर से टैक्स कट कर जो है इनकम मिले तो वो TDS कहलाता है। द अमाउंट सो डिडक्टेड एट सोर्स shall be deposited by the deductor in the government treasury with the prescribed time limits. The tax so deducted is called deduction of tax at source. इसी को कहते हैं deduction of tax at source. पेमेंट्स कौन कौन सी इस रिगार्डिंग हो सकती हैं जिनके ऊपर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स होगा? वो पेमेंट्स आपकी हो सकती हैं अंडर डिफरेंट सेक्शंस। देखिए लिस्ट आपके पास अवेलेबल है चैप्टर में, यही लिस्ट फर्दर जो है डिफाइन की गई है वन बाय वन। हम यहाँ नेम्स पढ़ रहे हैं। सेक्शन 192 के अंडर सैलरीज, 192A के अंडर पेमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेक्शन 194 डिविडेंड्स, 194A के अंडर इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194B के अंडर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल्स, winnings from horse races under section 194BB, payments to resident contractors 194C, payment of insurance commission 194D, payment under a life insurance policy 194DA, payment to non-resident sportsman or sports association 194E, payment to NSS 194EE, payment on account of repurchase of units by mutual fund or unit trust of India 194F, payment of commission etc. on sale of lottery tickets 194G, payment of commission or brokerage 194H, payment in respect of rent 194I, payment on transfer of certain immovable property other than agricultural land 194IA, payment in respect of rent by individuals or HUFs 194IB, payment under the specified agreement 194IC, payment of fees for professional or technical services 194J, TDS on income in respect of units 194K, payment of compensation on acquisition of immovable property 194LA, income from units of business trust 194LBA, income from units of investment fund 194LBB, income from investment in securitization trust 194LBC, payment of certain sums by individual or HUF 194M, payment of certain amounts in cash 194N, TDS on e-commerce transactions 194O। ये सारे हमारे सेक्शंस थे जिनके अंडर हमें जो पर्टिकुलर डिडक्शंस के रिगार्डिंग कहा गया है। इन सभी में हम यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद टैक्स इज ऑल्सो डिडक्टेड एट सोर्स ऑन फॉलोइंग पेमेंट्स बट दीज पेमेंट्स आर मेड टू नॉन रेजिडेंट्स और टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। So the TDS provisions relating to these payments have not been discussed in this chapter. तो इस चैप्टर में इसे ज़्यादा जो है कंसीडर नहीं किया गया है। We are skipping this point. Now we are taking one by one detailed provisions
रिगार्डिंग दीज अंडर दीज सेक्शंस, जो अभी हमने एक लिस्ट पढ़ी 28 पॉइंट्स की, जिसमें हम 1 बाय 1 ले रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन 192 के अंडर। हमारा सबसे पहला पॉइंट है सैलरीज। देखिए, जैसा कि सैलरीज के बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं, सैलरीज पिछले सेमेस्टर में आपका पूरा चैप्टर रहा आपके पास। अंडर द हेड सैलरीज आपको सैलरीज कंप्यूट करनी होती है। आपने सैलरी बिल्कुल वैसे ही कंप्यूट करनी है जैसा कि आपको वहाँ सिखाया गया है। देन आपने सैलरी में से आपको क्या करना है, डिडक्शंस को लेस करना है। और डिडक्शंस हमने इसी सेमेस्टर का जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर 15 डिडक्शंस के बारे में हमने इन डिटेल पूरा पढ़ा। वही सब डिटेल्स हमारे यहाँ यूज़ होनी है, जिसमें डिडक्शंस में सबसे पहले हमारा ATC, ATCCC, ATCCD, ATD, ATDD, ATDDB, ATE, ATEE, ATEEA, ATEEB, ATG, ATGG, ATGGA, ATTTA, ATTTB, ATU के अंडर हमने सभी डिडक्शंस यानी सेक्शन ATC से लेकर ATU तक की जितने भी डिडक्शंस हमने इस चैप्टर में पढ़ी, उन सभी का हमारा यहाँ पर यूज़ होगा। इसके बाद रेट्स ऑफ टैक्स। रेट्स ऑफ टैक्स हमारी क्या रहेंगी, ये भी हम टोटली रीड आउट कर चुके हैं। हमारा जो चैप्टर इनकम टैक्स के अंडर जो हमने टोटल इनकम निकाली और उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर हमने पढ़ा है, उस टैक्स लायबिलिटी में आपको स्लैब रेट्स दी गई हैं, जिसमें प्रॉपर डिवीजन करके दिया गया है इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन के लिए और अदर इंडिविजुअल्स के लिए। रूल्स एंड रेट्स विल बी द सेम जैसा हमने वहाँ पढ़ा। जैसा कि इंडिविजुअल्स के लिए 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5%, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% और बचे हुए बैलेंस के ऊपर 30%। ऐसे ही सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के रिगार्डिंग भी हमारे प्रोविजंस है। सीनियर सिटीजन ऐसे लोग जिनकी एज 60 ईयर्स अबव है, उनके लिए 60 ईयर्स अबव और 80 ईयर्स लेस, 60 साल से ऊपर और 80 साल से नीचे, तो ऐसे लोग हमारे सीनियर सिटीजन्स में आते हैं। उनके लिए हमारा जो रेट रहा अप टू 3 लाख नील, अगले 2 लाख के ऊपर 5%, अगले 5 लाख के ऊपर 20% और बैलेंस के ऊपर 30%। देन सुपर सीनियर सिटीजन्स जिसमें पहले 5 लाख तक नील, अगले 5 लाख तक 20% और बैलेंस के ऊपर 30%। तो हमारी ये स्लैब रेट्स जो हमने पीछे चैप्टर में रीड आउट की, हमारी ये बिल्कुल वैसे की वैसे यहाँ पर अप्लाई की जाएंगी। देन इनकम टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड HUF अंडर न्यू ऑप्शनल टैक्स रिजिम, ये सेशन 2021-22 असेसमेंट ईयर जो हमारा होगा उसके लिए अप्लाइड है। तो ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में जो है हमारी फर्दर यूज हो सकती है। इसमें भी देखिए, पहले 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5%, उससे अगले 2.5 लाख तक 10%, उससे अगले 2.5 लाख के ऊपर 15%, अगले 2.5 लाख के ऊपर 20% और उससे अगले 2.5 लाख के ऊपर 25% और अगले 2.5 लाख के ऊपर 30%। ऑन बैलेंस ऑफ इनकम जो हमारा है वो 30% शो कर रहा है। देन हमारा सरचार्ज भी रहेगा। सरचार्ज जो है 10% ऑफ सच इनकम इन केस ऑफ पर्सन हैविंग ए टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज। देन 15% रहेगा अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है। 25% रहेगा अगर इनकम हमारी 2 करोड़ से ज़्यादा है पर 5 करोड़ से कम है। 37% रहेगा अगर हमारी इनकम जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसे ही मार्जिनल रिलीफ जैसा हमने वहाँ चैप्टर्स में पढ़ा, 50 लाख रुपीज़ अगर हमारी जो टोटल इनकम है एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़, तो टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन सच इनकम शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 50 लाख रुपीज़ बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड्स 50 लाख रुपीज़। अगर 1 करोड़ रुपीज़ है बट नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़ है, in that case the total amount payable as income tax and surcharge on such income shall not exceed the total amount payable। 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से नीचे है तो उसकी अकॉर्डिंगली जो आपका प्रोविजन रहेगा, 5 करोड़ से ऊपर है तो भी उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोविजन वैसे ही चलेगा जैसा हमने पीछे पढ़ा है। देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वही 4% से जैसा आपको पीछे बताया गया है। Employee should furnish his PAN number to the employer, otherwise tax shall be deducted at higher rate under section 206AA।
एम्प्लॉय को अपना जो है पैन नंबर बताना होगा, अदरवाइज जो टैक्स है वो ज़्यादा रेट से कट सकता है। नाउ रूल्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सैलरीज, क्या रूल रहेंगे? फर्स्टली, हु विल डिडक्ट द टैक्स, कौन करेगा डिडक्शन? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम टू एनी एम्प्लॉय विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, तो वो डिडक्ट जो है टैक्स को कर सकता है, यानी एम्प्लॉयर जो पर्सन सैलरी दे रहा है। व्हेन टैक्स विल बी डिडक्टेड, कब किया जाएगा? ओनली व्हेन द एम्प्लॉयज एस्टिमेटेड इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर दैट ईयर एक्सीड्स द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट। अगर मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा सैलरी बनती है, केवल तभी आप जो है इसके ऊपर टैक्स की रिडक्शन कर सकते हैं। देन सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, अगर एक एसएससी को एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है तो उस केस में एक एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉयर को जो है फर्निश कर देगा, तो वहाँ पर एक ही एम्प्लॉयर टीडीएस जो है यहाँ पर कर सकता है। TDS after considering income under other heads. If an assessee who receives any income chargeable under the head salaries has also income chargeable under any other head of income for the same financial year, तो उसे अपने एम्प्लॉयर को सारे पर्टिकुलर्स डिपॉजिट कराने होंगे और फिर उसकी टोटल इनकम के ऊपर से जो है TDS हो जाएगा। एग्जाम्पशन रिगार्डिंग हाउस रेंट अलाउंस, अगर अमाउंट ऑफ HRA 3000 से ज़्यादा नहीं है, employer may grant exemption regarding rent paid on statement of employee. He will not insist to submit the rent receipt for exemption. अगर आपका HRA 3000 से ज़्यादा है, exceeds 3000, then the employer will grant the exemption regarding rent paid after receiving the rent receipt from the employee. If the annual rent exceeds 1 lakh per annum, the employee shall report the PAN number of the landlord to the employer. अगर एनुअल रेंट आपका 1 लाख से ज़्यादा है तो एम्प्लॉय को अपने ऑनर का, अपने जो लैंडलॉर्ड है उसका जो है नंबर, पैन नंबर भी देना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ सैलरी इन फॉरेन करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ TDS ऑन सैलरी, फॉरेन करेंसी में अगर आपका हो रहा है तो वैल्यू इन रुपीज ऑफ सच सैलरी शैल बी कैलकुलेटेड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज की रेट अवेलेबल होगी। Then provisions relating to tax paid by the employer on perquisites provided to the employee, अगर कोई भी perquisites एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जाते हैं तो उन जो आपके perquisites हैं उन्हें ध्यान रखते हुए ही जो एम्प्लॉय का TDS है वो किया जाएगा। सभी के सभी जो perquisites हैं अंडर डिफरेंट सेक्शन आपके जो आएंगे 192 1A 1B 10 10CC 40A सबसेक्शन 5 190 सबसेक्शन 2 में और 203 सबसेक्शन 2 में जो भी हैं आपकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, इन सभी को ध्यान में रखा जाएगा। देन रिलीफ अंडर सेक्शन 89 बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर 89 सेक्शन 89 के अंडर कोई भी रिलीफ है तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपका TDS होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट और कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, AOP, BOI, TDS shall be made after allowing relief under section 89, अगर कोई भी आपका इस रिगार्डिंग वो ड्यू बनता है। Then assessment regarding deduction of tax, अगर एक पर्सन की इनकम के ऊपर TDS हो चुका है तो फिर उसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर दी जाएगी। डिपॉजिट ऑफ टैक्स, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द सैलरी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसे कहाँ डिपॉजिट कराना है? अगर टैक्स डिडक्शन इज मेड बाय ऑन और बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, tax is paid without production of an income tax challan on the same day, tax is paid accompanied by an income tax challan within 7 days from the end of the month in which deduction is made, or tax is payable under section 192 1A by the employer on the value of perquisites. अदर डिडक्टर्स के केस में where the amount is paid or credited in the month of March up to 30th April, in any other case except section 194M within 7 days from the end of the month in which deduction is made or tax is payable under section 192 1A के अंदर। Under section 194M within 30 days from the end of the month in which deduction is made। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से टैक्स जो है पे करना है। नाउ फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट, जो एम्प्लॉयर है उसे फाइल करना पड़ेगा क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 24Q में, जिसमें आपके क्वार्टरली जो पीरियड्स रहेंगे वो 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च इन ईच फाइनेंशियल ईयर। These statements are required to be filled up to 31st July, 31st October, 31st January in respect of the first 3 quarters and 31st May for the last quarter of the financial year. Now furnishing of income, furnishing statement,
ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शैल फर्निश टू एम्प्लॉय ए स्टेटमेंट गिविंग करेक्ट एंड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द perquisites or profits in lieu of salary provided to him and the value thereof in the prescribed form. तो ये फॉर्म नंबर 16 के अंडर जो है इसे फिल जो है किया जाएगा. Now furnishing of evidence of claims by employee for deduction of tax under section 192. तो employee जो है he shall furnish the evidence or particulars in form number 12BB to his employer to claim exemption or deduction from his salary income regarding the following, जिसमें हाउस रेंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग 1 लाख, लीव ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U. तो ये सभी डिडक्शंस जो हैं इसका एक पर्टिकुलर प्रूफ जो है साथ में लगाया जाएगा. अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें ये सैलरी के रिगार्डिंग समझाया गया है. देखिए क्या कहते हैं आपसे, एन एम्प्लॉय सी वुड रिसीव द फॉलोइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. जो उसे सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 8,67,500. क्लेम करता है वो डिडक्शन जो कि आपकी 80C में आ जाएंगी. रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 62,000, LIC 12,000, देन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान का है 1,000. तो देखिए ये फिगर्स लिस्ट करने के बाद आपकी जो सैलरी बनती है 7,92,500. अब इसके ऊपर अगर टैक्स की कैलकुलेशन की जाए, आपको स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग सब समझाया गया है पिछले चैप्टर्स में, जिसमें पहले 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% से 12,500 और बचे हुए बैलेंस के ऊपर 2,92,500 के ऊपर 20% की रेट से 58,500. तो हमारा टोटल बना 71,000. हमारा सरचार्ज रहा नील. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो हमारा रहेगा 4% की रेट से 2840. तो देखिए जो हमारा TDS बनता है 73840. इट इज़ एनुअल. अगर हम इसे मंथली कन्वर्ट करें तो इसे 12 से डिवाइड करके 6,153 की जो इंस्टॉलमेंट है वो डेली की आपकी बन जाएगी. तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1. तो इस तरीके से आप इसमें TDS निकाल सकते हैं. अभी देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2. मिस्टर डी जो एक कंपनी के एम्प्लॉई एट उदयपुर जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, ही वुड रिसीव द फॉलोइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. देखिए क्या क्या रिसीव करते हैं. सैलरी इन्हें मिलती है 9,60,000, DA इन्हें मिलता है 2,80,000, बोनस इन्हें मिलता है 80,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस इन्हें मिलता है 150 पर मंथ फॉर 1 चाइल्ड. तो यहाँ पर आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस 100 रुपये महीना से ज़्यादा है, जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके. 600 रुपीज़ हमारे निकल कर आएंगे. देखिए क्योंकि 150 रुपये महीना है और जो अलाउड है वो 100 रुपये है, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा हुए. 50 रुपये महीना तो 12 महीने के हो गए 600 रुपये. देन रेंट फ्री हाउस 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज हम लेस लेकर चलते हैं. देखिए तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 15% ऑफ सैलरी में आएगा हमारा सैलरी अमाउंट 9,60,000, बोनस 80,000 और एक्सेस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस 600 रुपये. तो इसका जब हम 15% निकालते हैं इट विल बी 1,56,090 रुपीज़. और अगर हम इसे टोटल करते हैं तो 14,76,690 रुपये हमारा ये आ गया. इसमें से आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगी 50,000 रुपीज़ की. तो 50,000 की डिडक्शन लेस करने के बाद हमारी जो फिगर आई 14,26,690 रुपीज़. अब यहाँ डिडक्शन से क्लेम करते हैं जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस, ये आपका प्रोविडेंट फंड जिसमें आपका 96,000, LIC आपका 12,000, 96,000 और 12,000 आपके ऐड हो जाएंगे 1,08,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपको अलाउड है तो पूरे 1,08,000 आ जाएंगे. देन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 10,000 रुपये इन्होंने चेक बाय चेक पे किए हैं. 80G की डिडक्शन जाएगी तो ये 10,000 इनके फुल लेस हो जाएंगे. 100% डिडक्शन नो लिमिट में आएगा आपका ये. तो देखिए 1,18,000 की डिडक्शन लेस करने के बाद जो TDS के लिए सैलरी इनकी निकल के आती है वो है 13,08,690 रुपये. तो यहाँ से देखिए अब जब इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं तो पहले 2.5 लाख के ऊपर नील, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% से 12,500, अगले 5 लाख के ऊपर 20% से 1 लाख और बचे हुए 3,08,690 के ऊपर 30% से आपका निकल कर आएगा 92,607. और जब हम इसे टोटल करते हैं तो 2,05,107. देयर इज नो सरचार्ज. हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% से हम निकालेंगे 8,204 और जब हम इस सारे को ऐड करते हैं इट इज़ 2,13,311. दिस इज एनुअल. और जब हम इसे मंथली हम निकालना चाहें तो बाय 12 वी विल डिवाइडिंग तो ये आपकी फिगर आ जाएगी 17,776 रुपये. तो ये आपका मंथली टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स आपका निकल कर आ जाएगा. नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में
एक्स जिनकी इनकम अंडर सैलरी हेड जो है 7,29,500 है, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड पीपीएफ में इन्होंने डाले 50,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने पॉलिसी ले रखी थी 1,20,000 की, जिसके ऊपर पे कर रहे हैं 15,000 रुपये, और इन्होंने परचेज किए शेयर्स जो कि एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल के अंडर आते हैं 5,000, तो 1 लाख। यहाँ से आप अब कंप्यूट करेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ही हैज इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉयर दैट देयर इज अ लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन रिलेशन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ₹30,000। तो देखिए यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास सैलरी है 7,29,500, जिसमें से हम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डिडक्ट कर सकते हैं, तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम रह जाएगी 6,99,500, जिसमें से हमारी एटीसी की डिडक्शंस हैं, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एंड पीपीएफ 50,000, देन एलआईसी में 10% हम निकालेंगे, कैलकुलेशन आपको सिखाई थी डिडक्शन के चैप्टर में, 1,20,000 का 10% 12,000 और प्रीमियम 15,000, दोनों में से विच एवर इज लेस 12,000 इज लेस। एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल भी एटीसी में आ जाएगा। तो देखिए टोटल 67,000 की डिडक्शंस आपकी आ गई, और ये लेस करने के बाद आपके पास जो फिगर रह जाती है 6,32,500। जब इसके ऊपर हम टैक्स निकालते हैं, पहले 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% से 12,500, और अगले बैलेंस के ऊपर 1,32,500 के ऊपर जो फिगर आएगी 20% की रेट से 26,500। तो देखिए टोटल हमारा जो आया ये 39,000, जिसका हम 4% जब निकालेंगे, एजुकेशन सेस लगाएंगे क्योंकि सरचार्ज आपका लगेगा नहीं, तो 39,000 के ऊपर 4% आपने ऐड करने के बाद जो टैक्स डिडक्टिबल फ्रॉम सैलरी है वो निकाल लेना है। तो ये आपकी एनुअल फिगर आ गई आपकी। इसे जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारी मंथली फिगर निकल के आएगी, दैट विल बी 3,380 रुपीज। So this is your monthly tax to be deducted at source, and this is all about the topic of salary, जिसमें आप डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक पार्ट रहा इस चैप्टर का। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे करेंगे कि और हमारे कौन कौन से सेक्शंस के अंडर जो है टीडीएस हो सकता है या टीसीएस हो सकता है, वो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।